Moving on then, Republic has accessed the commission report of the survey of the Gyan Vapi Mosque. The report that runs over 12 pages mentions a shivling being found in the wuzu khana of the disputed premises on May 16th, which was the third and the final day of the videography survey by the commission. Now, the report also highlights the presence and sportings of several Hindu motifs like Trishul, Damru, Swastik and Lotus as well. But as the hearing on the issue continues today, an explosive claim on the involvement of Samajwadi leader Mukhtar Abbas Naqvi in the case has made it more controversial. The latest survey report claims the existence of a shivling in the mosque compound, with presence of multiple Hindu motifs found on the walls of mosque. Pictures accessed by Republic of the survey report clearly mentions presence of swastik, lotus, trishul and several other signs of Sanatan culture. The Gyan Vapi survey report speaks about temple-like structures found within the mosque. It speaks about lotus engravings and idols found in the debris within Gyan Vapi. It also, most importantly, speaks about Damru and Trishul engravings within Gyan Vapi. But most strikingly, it speaks about a swastik right outside the mosque storeroom. The faithfuls never doubted. विशाल सिंह ओझा प्रताप सिंह ने अपनी डिटेल जो 3 दिन की थी, जिसमें अंदर जो अंडरग्राउंड जो ये फर्स्ट फ्लोर हम लोग जिसको ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, उसकी बाबत और अंदर जो चीजें उन्होंने 3 दिन देखी, उसकी विशाल एकदम एग्जॉस्टिव और बहुत डिटेल सर्वे कमीशन रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया। उसके साथ उन्होंने चिप्स दाखिल किया जिसमें फोटोग्राफ्स हैं, जिसमें वीडियोग्राफी है और वो सब चीजें कोर्ट ने 3 बक्से में सील करवा दिया है। अब उसकी कॉपी जो है विपक्षी के अधिवक्तागण को मुहैया कराई जाएगी। जब उनको कॉपी मिल जाएगी तब वो उस पर जो है कोर्ट उसकी ग्राह्यता और उसकी आपत्ति इन्वाइट करेगी, तब कोर्ट उसकी ग्राह्यता पे बहस सुनेगी और वो कमीशन रिपोर्ट डायस उसको एविडेंस के तौर पे लिया जाए कि न लिया जाए, उस पर फाइनल आदेश सुनाएगी। And reiterate their claims. ये काशी पंचकोशात्मक शिवलिंग है और जो ये मिला है शिवलिंग ही है। विश्व में जो मुस्लिम देश हैं, किसी मस्जिद में कोई मूर्तियां नहीं होती हैं जिसमें श्रृंगार गौरी और नंदी की प्रतीक्षा 300 साल की, और नंदी के सामने ही वो शिवलिंग है। जो फव्वारा कहते हैं तो फव्वारा तो चलता नहीं, फव्वारा का उसमें कुछ प्रतीक चिन्ह है नहीं, वो शिवलिंग है। मैंने देखा है, एकदम मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि पश्चिमी दीवार केवल मंदिर का ही हिस्सा ही है। और जैसे कोई मंदिर आधा आधा बना हो और आधा काट दिया गया हो, आधा रह गया हो, इस रूप में है। वो मंदिर ही है। शंख है, चक्र है, पशु हैं, कलाकृतियाँ हैं, कमल है और क्या कहते मन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मंदिरों में, देवस्थानों में बनाई जाती हैं। छोटे छोटे देवताओं के भी चित्र हैं उस पर। तो यह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कोई भी देखकर इसको समझ सकता है। But the naysayers remain in denial. Without even the court getting the final report, the survey report, without even calling the Muslim side and the other side going to the judge, he had passed an order immediately. Completely unfair order. It is completely unfair that the media report is leaked by a person who is no more a commissioner. And now with the hearing due today, it needs to be seen how the concerned parties will react to the order. Will the court order set the record straight, or will some continue to stir the controversy? Bureau Report, Republic TV. Now, as the controversy over the Gyan Vapi issue continues to rage on, Republic media crews are on ground bringing you every development on the story. Here's a ground report filed by my colleague Vivek from Lucknow's historic Bara Imambara that seeks to explain the functioning of wuzu khana and why it has been the topic of discussion in the Gyan Vapi case. मैं इस वक्त लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में हूं और मेरे सामने जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये आसिफी मस्जिद है। ये सामने की जो तस्वीरें हैं ये आसिफी मस्जिद है और अमूमन आज की तारीख में यहाँ पर जो रोज़ाना के तौर पर यहाँ पर जो नमाज है वो अदा की जाती है। इसके साथ साथ जो दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं ये बड़े इमामबाड़े की तस्वीर है। सामने की तरफ में ये बड़ा इमामबाड़ा, उसके दाहिनी तरफ हमने आपको उसके दाहिनी तरफ हमने आपको दिखाया कि वो मस्जिद है और ये सामने की जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ
हूँ ये बावली है। सबसे पहले जब इमामबाड़ा बन रहा था तो उस दौरान सबसे पहले जो यहाँ के नवाब थे उन्होंने सबसे पहले ये बावली बनवाई जहाँ से पानी का स्रोत उनको मिला, और उसके बाद ये आसिफी मस्जिद उन्होंने बनवाई। आसिफी मस्जिद, ये जो सामने की तस्वीरें हैं ये आसिफी मस्जिद की तस्वीरें हैं, और उसके बाद इमामबाड़ा बना। लेकिन जो विवाद है, हम विवाद पर आते हैं, और ये जो सामने का फव्वारा आपको दिख रहा है ये वो फव्वारा है जिसका लोग ये कहते हैं कि वज़ू करने को लेकर के इस हौज का इस्तेमाल करते थे। अली हसन साहब हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करेंगे। अली हसन साहब, यहाँ के पानी की देखरेख का काम आप करते हैं। ये समझना चाहूँगा, ये जो फव्वारा है इसका काम क्या है, इसको क्या कहते हैं, क्या चीज़ें हैं? देखिए सर, ये हौज है और इसको भरा जाता है। उसको भरने के बाद में, जैसे क्योंकि खुली हुई चीज़ है ये, तो इसके ऊपर गर्द वर्द आ जाती है, तो इससे फव्वारा चलाने से इसके अंदर लहर पैदा होती है पानी में, तो वो गंदगी को बाहर निकाल देता है। दूसरी चीज़ ये कि जब चलता है फव्वारा तो खूबसूरती में भी अच्छा लगता है, तो दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। समझना चाहूँगा सर, जैसे आपने कहा कि खूबसूरती के लिए इस्तेमाल है, हौज में लोग वो करते हैं, तो क्या फव्वारे से लोग वजू करते हैं? फव्वारे से वजू नहीं होता है, वजू डायरेक्ट हौज से होता है। लेकिन फव्वारे को मैंने आपको बताया कि मेन काम इसका ये होता है कि देखिए भी बीच में कितनी गंदगी थी, अब वो सब साफ हो गई है, सब किनारे आ गई है, तो इसका मेन काम ये होता था कि हौज को